کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، اس عید مبارک کے صدقے میں ایک آڈیو آپ حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں، جو آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ ایک نام بہت ہی مشہور ہے جس کا نام ہے غالب دیوبندی۔ آپ حضرات میرے ہی چینل سے اس کی 2 4 5 6 جو بھی آڈیو اس پہ ڈالا ہوا ہے آپ حضرات سنے ہوں گے۔ یہ ہر ہمارے سنی بھائیوں سے جلیل ہو چکا ہے، اور اس بار ہمارے ثاقب رضا صاحب نے بہت ہی بہترین دھلائی کیا ہے اس کو۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ثاقب رضا صاحب جی 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 خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی جی خیریت سے ہے نا؟ جی الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین۔ اچھا 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 اچھا، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے جی کہ ایک مسئلہ ہے، آپ سے وضاحت چاہتا ہوں۔ جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا بغض کیوں ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ نبی کریم سے بھی کسی مسلمان کو بغض ہو سکتا ہے؟ جی بے شک ہے، ایسا ہے، موجود ہے۔ اور اگر ایسا آپ کی سمجھ ہے، دیکھیے سنیے، اتنا حسد کیوں ہے؟ دیکھیے اطمینان سے بات، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنیے آپ میری بھی بات ریکارڈ کر لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو رسول کریم سرور کائنات کا بہت دور کی بات، اگر سرور کائنات کے مدینہ شہر کی مٹی یا درخت کے پتے سے بھی اگر کسی کو نفرت ہے یا اس کی ادنا توہین کرتا ہے، تو علماء دیوبند، علماء اہل سنت کے نزدیک سب سے بدبودار اور سب سے مرتد اور کافر ہے، اور اس کی سمجھ، اس کی جسم اور اس کی ہر چیز پر لعنت بھیجتے علماء دیوبند صاحب۔ یہ میری ریکارڈ آپ سب کو پہنچا دیجیے، اور آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سنیے، اور آپ اپنی سمجھ اور اپنا اعتقاد بھی بدل لیجیے علماء دیوبند کے تعلق سے۔ میں ایک ذمہ دار ہو کر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سنیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آپ کو بہت سمجھ میں آ گیا نا؟ جی 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 میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ تو ہمارا اعتقاد سمجھ میں بات سنیے، اطمینانی طور پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ہڑبڑاہٹ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ کو اور اطمینان سے بات کیا جائے۔ چلیے ابھی آپ نے بولا، سنیے 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 میرا بات سن لیجیے پہلے، آپ نے بولا ہے میرا۔ نہیں سنیے، آپ کو اپنے اس الزام کو واپس لینا چاہیے۔ آپ نے بہت بھونڈا الزام لگایا علماء اہل سنت پر۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر۔ نہیں سنیے، آپ کو ثابت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ثابت کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سنیے غالب صاحب میری بات سنیے۔ آپ بولے دیکھیے اطمینان سے بات ہو رہی ہے، آپ پہلے میری بات سن لیجیے۔ آپ بولے میں بھی بول لوں گا، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ بولیے گا، میں سنوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ایک منٹ تو میری بات سنیے گا نا، کیونکہ آپ نے الزام مجھ پر لگایا ہے، تو آپ کو میری بات زیادہ سننی پڑے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر آپ سنیے، بات یہ ہے کہ میں نے الزام لگایا ہے تو آپ وضاحت چاہیں گے نا کہ میں نے کیوں الزام لگایا؟ تو لیکن اب آپ سن لیجیے۔ نہیں آپ ڈائریکٹ ہم کو اس طرح نہیں بول سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کو کہ مولانا صاحب آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول پاک کے مدینے کی مٹی کی بھی کوئی توہین کرے تو وہ زندگی کے لیے کافر ہو جاتا ہے، ابدالآباد جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں آپ کی کتابوں میں اس طرح کی عبارت یا اس طرح کا کچھ ملتا ہے تو اس کا ہمیں حل چاہیے۔ آپ مجھے اس طرح کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو رسول پاک سے بغض ہے۔ اللہ اکبر، ایک نشے میں دھت مسلمان کو بھی رسول اللہ سے بغض کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اتنا بڑا الزام لگائیں؟ چلیے اب آپ بول لیے، اب میری باری ہے، سنیے۔ چلیے ماشاء اللہ، آپ نے بولا کہ اگر ایسا کوئی کرے تو مدینہ کی مٹی سے بھی ایسے، مطلب آپ نے بہت اچھا مثال دیا، تو وہ کافر مرتد ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی نبی کے بارے میں ایسا بولے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں؟ اگر میں آپ کے علماء سے یہ ثابت کروں کہ آپ کے علماء اکرام نے نبی کے بارے میں کیسا کیسا بغض رکھا ہے، تو کیا آپ یہ یقین کریں گے اور توبہ کریں گے؟ دیکھیے
हम जिस उलमा की आप बात कर रहे हैं हम वहीं से होकर आए हैं, वहीं से हम पढ़ के आए हैं। तो मैं हवाला देता हूँ, आप सुनिए, मैं हवाला देता हूँ हजरत, आप पढ़ लीजिएगा। पहले एक मिनट आप बोल दिए, आप मेरी एक्सप्लेन सुनिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो किसी भी अकायद, सुनिए, किसी भी अकायद या किसी भी मसलक का जो अकायद चलता है किस पे चलता है? उसके उलमा इकराम। और जो अच्छा ये बताइए, आप अपने उलमा इकराम, अपने अकाबिर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। देखिए तो सुनिए बात सुनिए, तो अगर उन्होंने गुस्ताखी की है, अगर उन्होंने गुस्ताखी की है, सुनिए आपने सवाल किया कि आप अपने अकाबिर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। जी सुनिए, मैं अकाबिर को फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरे अकाबिर जो हैं, मेरे अकाबिर कोई खुदा नहीं है, मेरे अकाबिर रसूल नहीं है, मेरे अकाबिर सहाबी नहीं है, मेरे अकाबिर, सुनिए तो मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरे अकाबिर की वही बात मानी जाएगी या मैं अपने अकाबिर की वही बात मानूंगा जो कुरान और हदीस और इजमा और क़ियास के मुताबिक होगा, और उससे हटकर अगर कोई बात होगी तो मेरे अकाबिर भी है तो उसकी बात को उठाकर कूड़े के दान में फेंका जाएगा और गली में दे मारा जाएगा, समझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात सुनकर। तो सुनिए, हाँ आप सुनिए, हर अहले सुन्नत का खादिम आपको यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, ये बात आपके जुबान से सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अच्छा ये बताइए, जो आपने अभी बोला, तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा बोलता है नबी के बारे में, अगर कोई गुस्ताखी करता है, तो क्या आप उसे काफिर बोलेंगे? भाई देखिए, किसी मुसलमान के मुंह से, किसी मुसलमान के कलम से या मुंह से अगर कोई ऐसा लफ्ज निकलता है जो कुफ्र पर मुश्तमिल है या हमको या आपको लगता है कि कुफ्र है, तो उलमा अहले सुन्नत ने ये कानून बनाया है कि उस कलिमा कुफ्र जो हमको और आपको लगता है कि उसमें कलिमा कुफ्र है, तो फुक़हा ये फरमाते हैं कि अगर उसका 99 मतलब कुफ्र की तरफ ले जाता है और एक मतलब में इस्लामी पहलू निकलता है, तो उलमा अहले सुन्नत के मुफ्ती और काजी पर लाजिम है कि वो इस्लामी पहलू को अपनाए। अब आपको ऐसा कलिमा ले आइए जिसका आप 99 पहलू जो है कुफ्र का निकालें और एक पहलू भी इस्लाम का ना निकले, तो बिलाशक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएगा। हर एक को लगाना चाहिए, जो नहीं लगाएगा। गालिब साहब, अब मुझे बोलने दीजिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। चलिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपने ये बोला। चलिए अब मैं आपके अकाबिर का नाम ले रहा हूँ और हवाला बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उन्होंने गुस्ताखी की है तो एक बात सुन लीजिए पहले, कि सबसे अफजल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये कोई भी मतलब से ताल्लुक रखता हो, बात सुन लीजिए, अगर कोई वो, मैं सिर्फ पर्सनल देवबंदियत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी मतलब से ताल्लुक रखे, अगर नबी की शान में गुस्ताखी करे तो वो काफिर है, काफिर व मुर्तद है, जहन्नमी है, बिल्कुल। इसमें ये नहीं कि मैं आपको पर्सनल बोल रहा हूँ, लेकिन देवबंदियत के ताल्लुक से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके देवबंद में ऐसे बहुत सारे अकाबिर हैं जिन्होंने नबी की शान में बहुत बड़ी बड़ी तौहीन और खुदा के भी शान में की है, और उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं, और जो है उन्हें आप लोग काफिर मानते भी नहीं है, और उन्हें मोमिन मानते हैं और अपना अल्लामा मानते हैं। बात यह है। तो मैं हवाला बोल रहा हूँ, आप समाप्त कीजिएगा गालिब साहब, ठीक है। देखिए, इब्ने तैमिया ये क्या आपके अकाबिर हैं कि नहीं है? पहले आप ये वजाहत करें, क्लियर करें। कौन? इब्ने तैमिया भाई इब्ने तैमिया अकाबिर अहले सुन्नत हैं। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सुनिए, मुल्ला अली कारी ने जो मिरकात में लिखा है कि ये, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आगे सुनिए। नहीं तो आपके नहीं है क्या? नहीं मेरे नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत, मैं मसलके आला हज़रत से ताल्लुक रखता हूँ। तो मतलब ये है कि आप मुल्ला अली कारी वगैरह तो उलमा अहले सुन्नत में से नहीं है? पहले बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनिए। मैं आपको कह रहा हूँ जो बात बोल रहा था, गालिब साहब बात सुनिए, आप बोले, इत्मीनान से बात होगी। मुल्ला अली कारी साहब इब्ने तैमिया के मुतालिक सुनिए, इब्ने तैमिया, अगर आपको ये इबारत मालूम नहीं है तो मैं सुनिए क्या लिखते हैं। इब्ने तैमिया का जो चेला है इब्ने अब्दुल हादी, वो लिखते हैं कि इब्ने तैमिया नबियों से अफजल है, ठीक है। और हवाला देखिए, अल-उक़ूद अल-दूरिया सफ़ा नंबर 197 पे इसको लिखते हैं। क्या फरमा रहे हैं? क्या किताब का नाम बता रहे हैं? किताब का नाम है अल-उक़ूद अल-दूरिया, ठीक है। सफ़ा नंबर अल-उक़ूद अल-दूरिया सफ़ा नंबर 197 पे है। और सुनिए, और देखिए, और क्या आगे मैं और भी वजाहत कर दूं आपके उलमाए कराम के बारे में। अब सुनिए, देखिए ये बात आपकी उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप इसको मुझे भेज ना दें, ठीक है। अच्छा चलिए, और मैं इनके शागिर्द,
सुनिए मैं नहीं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपकी मैं तहसीक के लिए कह रहा हूँ कि आप मुझे ये इबारत जरूर भेज देंगे, और आपकी किताब का नाम भी मुझे, बेशक सुनिए आप, हाँ आपकी किताब का भी नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप उनके शागिर्द की बात कर रहे चलिए, हैं। अगर वो किताब आपकी नजर से नहीं गुजरी तो मुझे लगता है ये किताब आपके जरूर नजर से गुजरी होगी। सुनिए, लेकिन मुझे जो इबारत आपकी नजर से नहीं गुजरी है। हजरत मेरी बात सुनिए पहले, मैंने बोला कि मुझे भी वक्त दीजिए ना। नहीं, सफा नंबर 131 पे सुनिए क्या लिखते हैं किताब है इस्माइल देहलवी की किताब है तक़वियतुल ईमान जी। अब सुनिए, औलिया अंबिया जितने अल्लाह के बंदे हैं, ये लिख रहे हैं इस्माइल देहलवी, अब गौर से सुनिएगा। औलिया अंबिया जितने भी अल्लाह के बंदे हैं वो सब इंसान हैं और बंदे आजीज और हमारे भाई। सुनिए क्या लिख रहे हैं, और हमारे भाई, मगर अल्लाह ने उन्हें बड़ाई दी, अल्लाह ने उन्हें बधाई दी, वे बड़े भाई हुए। ये बताइए क्या इस्माइल देहलवी के ये जो इस्माइल देहलवी बोल रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हैं, तो इससे मतलब कि क्या इस्माइल देहलवी भी नबी हैं? माज़अल्लाह। नहीं, तो मतलब ये हुआ कि ये इबारत आपके नजदीक कुफ्रिया है ना? ये बिल्कुल नबी की शान में गुस्ताखी है कि नहीं है? क्योंकि कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत है। सुनिए आप, ठीक है, नहीं अभी आयत मैं आपसे पूछूंगा तब आप जाइएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि ये इबारत यही है ना, गुस्ताखी है ना? जी बिल्कुल। और सुन लीजिए एक मिनट, ये सूरह कहफ की वर्ष नंबर हजरत सुनिए तो सही, आप अल्लाह फरमा रहा है कि आप फरमा दीजिए। मैंने अरे हजरत मैंने आपकी इबारत सुन ली, अब आप सुनिए, आपने इबारत भी पढ़ दी, अब सुनिए। ये इबारत गुस्ताखी है ना? जी बिल्कुल तो गुस्ताखी। इस इबारत नजर में क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने बताया ये इबारत, तो मैं कह रहा हूँ कि इस इबारत में जब गुस्ताखी है तो जो इस्माइल देहलवी को गुस्ताख ना माने, मुसलमान माने, उनके लिए क्या हुक्म है? जी अच्छा, बात सुनिए, अब बहुत सारे हवाले हैं। नहीं, आपने कहा कि ये मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। सुनिए पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट होने के बाद ही मैंने आपको सवाल किया ना। सुनिए बात सुनिए, सिर्फ इस्माइल देहलवी नहीं है, आपके बहुत सारे अकाबिर हैं, गंगोई भी हैं। नहीं तो अभी इस्माइल देहलवी पर ही आप बात कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक हवाला दिया, पहले आप उसको क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। पहले आप बताइए, पहले दूसरे पे मत जाइए, दूसरे मौजू पे मत जाइए, पहले आप बताइए कि अगर ये गुस्ताखी है तो कुफ्र है कि नहीं है। पहले आप अपने जबान से इसको ये क्लियर सुनिए। मेरे नजदीक तो गुस्ताखी नहीं है, ठीक है? गुस्ताखी नहीं है तो क्या नबी का कोई भाई भी हो सकता है? माअल्लाह। सुनिए ना मेरे भाई, हम तो सुनिए भाई, सुनिए बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। वो इबारत गुस्ताखी है ना? तो गुस्ताखी इबारत में जो, सुनिए हजरत, गुस्ताखी इबारत मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, मुझे ये भी मालूम है कि आप क्या चाहते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, ये इबारत जिस इबारत को आप गुस्ताखाना कह रहे हैं, वही इबारत मौलाना अहमद रजा खान साहब के सामने भी थी, मगर उन्होंने फिर भी जो है तक़वीयतुल ईमान के मुसन्निफ मौलाना इस्माइल देहलवी को जो है मुसलमान तकफीर नहीं की उनकी। अच्छा, तो उन्होंने काफिर नहीं बोला? बिल्कुल काफिर नहीं कहा, आपको नहीं मालूम है? अच्छा ये सुनिए, अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने उन सबको काफिर बोला जो नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, ठीक है? नहीं, इस्माइल देहलवी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं उसको काफिर नहीं कहता। हाँ, तो मैंने इसके बारे में ये सुना कि शायद अब जो हो, अब इस पे मैं आप पहले मेरे भाई सुनिए, आप क्लियर कीजिए कि आप क्या कहते हैं। चलिए आप पहले क्लियर कीजिए आपके अकाबिर। हम ये कहते हैं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ इस बात है आपके अकाबिर के ताल्लुक से है, आपकी नजर में गुस्ताखी कैसे नहीं है? पहले आपने बोला इबारत, अब ये इबारत आपकी इबारत पर बहस होगी, आपकी इबारत पर बहस होगी। आपने कहा ये इबारत कुफ्रिया है, ठीक है? यही इबारत आपके आला हजरत के सामने भी थी, उन्होंने कुफ्रिया नहीं कहा। बताइए, जो काफिर और गुस्ताख को गुस्ताख ना कहे वो खुद काफिर होता है कि नहीं होता है? पहले आप बताइए कि आप इस ताल्लुक से क्या बोलते हैं? तो हो जाता है, हमारे नजदीक हो जाता है। ये बताइए आपके नजदीक में क्या है, ये काफिर है कि नहीं है? कौन? ये मैंने जो अभी इबारत पेश की। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे नजदीक तो नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। मैं अरे क्यों नहीं है, एक्सप्लेन कीजिए तो, पहले बात की तो एक क्लियर कीजिए। नहीं, मेरे नजदीक नहीं है और अहमद रजा नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो आपके नजदीक अगर नहीं है तो क्या ये भाई हैं? तो वो बात आप अहमद रजा साहब से भी पूछिए ना। अरे पहले आप, ये आपके अकाबिर है ना, पहले आपकी, मैं मतलब से बात कर रहा हूँ, मैं आपके अकाबिरों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहले आपके। मेरे भाई सुनिए, मैं गुस्ताखी जो उस इबारत को नहीं मानता हूँ, तो सिर्फ मैं नहीं मानता हूँ ना, मौलाना अहमद रजा भी नहीं मानते हैं। अच्छा, इसको भी नहीं मानते हैं, तो चलिए और सुनिए,
नहीं उसको नहीं, खात्मे नबूवत। अच्छा ये बताइए, तहजीरुन नास पढ़े? तहजीरुन नास नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात। हमने अरे ये सब आपके अकाबिर हैं, पहले बात सुनिए हजरत। सुनिए सुनिए नहीं हजरत, से एक बात मिनट हो रही है, सुनिए, इत्मीनान से, आप- इसमें कोई हजरत एक घबराहट की मिनट बात आप नहीं है। सुनिए। पहले आप, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तक़वीयुल ईमान में, हजरत सुनिए, एक मिनट सुनिए आप, तक़वीयुल ईमान में लिखा हुआ है कि नौजुबिल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह के शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। ये इबारत सब कुछ अपनी आंख से मौलाना अहमद रजा खान साहब देखे, आपके आला हजरत सब अपनी आंख से देखने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं इस्माइल देलवी को काफिर नहीं कहता। क्या आपने पढ़ा? कहाँ पढ़े आप कहाँ पढ़े? क्यों आपने नहीं पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा है? आप कहाँ पढ़े? आप हवाला तो दीजिए। अरे भाई एक मैं हवाला दे रहा हूँ। तमहीद ईमान सफा नंबर 132 पढ़ लीजिए, आपको अभी भेजूं क्या व्हाट्सएप में? अच्छा ठीक है, भेजिए। चलिए और हाँ, बात सुनिए। चलिए, ठीक है। सुनिए खत्म नबूवत पे एतराज करते हैं और आप बोल रहे हैं ना, मुझे भी बोलने दीजिए। अरे मुझे भी बोलने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं बोला? सुनिए सुनिए सुनिए, ये बताइए, आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को काफिर बोला कि नहीं बोला? आप पहले बताइए। नहीं बोला, मुसलमान बोला है। नहीं बोला? मुसलमान बोला है। अशरफ अली थानवी खुद बोल रहे हैं कि अगर वो मुझे काफिर ना बोलते तो वो खुद काफिर हो जाते। अशरफ अली थानवी किताब में लिखते हैं। देखिए मैं बगैर प्रूफ की बात नहीं करता, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सुनिए अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं मैं बगैर हवाले की बात नहीं करूंगा ना हजरत, मैं हवाले की बात कर रहा हूँ। सुनिए मैं अभी मुकम्मल हो गई, अगर मुझे भी बोलने दीजिएगा। नहीं बात करने में मजा नहीं तो आप सुनिए गालिब साहब, अगर आप इज्जत बजा मैं अभी आपको इबारत देता हूँ, मैं आपको इबारत देता हूँ, मैं आपको इबारत मैं देख लूंगा। लेकिन आपने हाँ, सुनिए, आप ये कैसे बोल दिए कि आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं बोला? तो आप मुझसे ये कहें ना कि इबारत भेजे, कहाँ लिखा है? मैं आपको इबारत भेज रहा हूँ ना हजरत, मैं अपनी इबारत तो नहीं भेजूंगा। अरे आपने अभी झूठ बोला कि नहीं बोला कि आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं बोला? अरे भाई आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मौलाना अहमद रजा खान साहब ने मौलाना अशरफ अली थानवी को मुसलमान लिखा है, मैं किताब भेज रहा हूँ आपके पास। अच्छा, और ठीक है, आप मेरी आवाज, अच्छा, हाँ मेरी आवाज तो बोल रहे हैं। अशरफ अली थानवी, सुनिए, अशरफ अली थानवी खुद लिखते हैं कि उन्हें जब आला हजरत का विशाल हुआ, सुनिए बात सुनिए, जब आला हजरत का विशाल हुआ, मैं आपको स्कैन में भी भेजूंगा अगर आप चाहते हैं तो। आला हजरत का जब विशाल हुआ तो उनके शागिर्द ने तो जब सुने अशरफ अली थानवी तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने पूछा कि वो तो हमेशा आपको गुस्ताख और काफिर बोलते थे, तो आप उनके लिए दुआ किस लिए कर रहे हैं? तो अशरफ अली थानवी ने बोला कि उनके नजदीक में गुस्ताख और नबी का गुस्ताख था, अगर वो मुझे काफिर ना बोलते तो वो खुद काफिर हो जाते। तो यहाँ पे तो अशरफ अली थानवी खुद अशरफ अली थानवी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यानी आला हजरत ने मुझे काफिर बोला है। तो आप कैसे बोलें कि आला हजरत को अशरफ अली थानवी को आला हजरत? मेरे भाई आप मुझे हवाला लेने से पहले मुझे आप कैसे कुछ कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ। देखिए हमारा और आपका ये काम रहा, आपने जो कुछ कहा वो इबारत आप मुझे भेजिए। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं सुना। आपके नजदीक ये सब गुस्ताखी है कि नहीं है, ये आप ये बताइए। हम आपको सुनिए, हम आपको मेरी बात सुनिए तो मैं आपके मसलक से बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके उलमाए कराम से बात कर रहा हूँ, ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताइएगा ना कि आपके नजदीक ये काफिर है कि नहीं है, ये कुफ्र है कि नहीं है? तो अगर ये कुफ्र, सुनिए, अगर ये कुफ्र है और आपने इनको काफिर नहीं बोला तो क्या आप काफिर हुए कि नहीं हुए? मेरे नजदीक तो कुफ्र है ही नहीं, आपके नजदीक है ना। अच्छा, नबी के कोई भाई हो सकता है? अरे भाई ये मसला तो बात का है, हमने कहा हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके उलमा ने तो खत्म नबूवत पे भी एतराज कर दिया। तहजीरुन नास सफा नंबर 40 कासिम ननतवी लिखते हैं अगर नबी के बाद सुनिए अगर और भी कोई नबी आ जाए, सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी तरफ एक इबारत आपने पेश की, उसी इबारत में रही है अभी। अरे मैं आपके जितने भी अकाबिर हैं ना, मैं उनकी जो कुफरिया अकायद हैं उन सबको पेश कर रहा हूँ, ठीक है? आपके सिर्फ एक अकाबिर ने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की। आपके अक्सर और समझ लीजिए कि 100 में से 75% अकाबिरों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। और ये प्रूफ है, मैं आपको सफा नंबर हवाला के साथ बोल रहा हूँ। सुनिए, हवाला सुनिए, खात्मे नबूवत पे एतराज। नहीं भाई आप सुनिए ना, आप सफा नंबर 40 पे सुनिए कासिम नानतवी क्या लिखते हैं। हजरत अभी कहाँ जा रहे हैं आप? आपके अकाबिर हैं कि नहीं, आप तस्लीम कीजिए। सुनिए ना, सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप इधर उधर मत घुमाइए। मैं आपके
इस तरह बात नहीं होती है मौलाना, इस तरह बात नहीं होती है। देखिए मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक ये कोई स्टूडेंट तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। तालीम है। आपने एक इबारत पेश की या आपने एक सुनिए, इबारत पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, जनरल का तैयारी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं ना आलिम हूँ, ना मैं मौलाना हूँ, और ना मैं हाफिज हूँ। इसीलिए आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान है, स्टूडेंट इतना आसान होने है के कि भी आप एक काबिल इबारत पेश करके चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट होने के काबिल से भी आपके तमाम अकाबिरों को जिन्होंने नबी की शान में आप सुनिए मैं आपके सामने बात आप तो बहस ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए फिर मैं इस तरह फोन काट दूंगा, अगर आप बहस नहीं करना चाह रहे तो मैं फोन अगर आप फोन काटिएगा तो मैं समझूंगा कि आप भाग गए, पहली बात। अच्छा, तो आप इबारत पर क्यों नहीं आ रहे? आपने जो, हमने तो ये नहीं कहा था कि आप पहले मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मेरे बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे किस ताल्लुक से बात कर रहा हूँ? आपके अकाबिरों के बारे में। पहले उसे वाजे होने दीजिए, क्लियर तौर पे उसका क्लियरिफिकेशन होने दीजिए, ठीक है, उसे वजाहत करने दीजिए। उसके बाद आप दूसरे मौजूद पे आइएगा। मैं अभी तमाम आपके अकाबिरों के नाम गिनवा दूं, उनके गुस्ताखी को तमाम अकाबिर के नहीं है। सुनिए पहले एक का तो फैसला पहले हो जाए ना, बात एक तरफ से होनी चाहिए, कायदे के तहत होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने जो स्टार्टिंग किया उस पर आपने वजाहत क्यों नहीं किया? क्या मैंने स्टार्टिंग किया था इब्न तैमिया के ताल्लुक से, इब्न तैमिया के ताल्लुक से, तो पहले उसका क्लियरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद सेकंड पाइएगा। क्या इब्न तैमिया नबियों से अफजल है? किसने कहा ये? किसने कहा? सुनिए, आप ही के अल्लामा है। हाँ सुनिए, आप ही का अल्लामा है अब्दुल हादी। हाँ, आप अब्दुल हादी हैं, और आपके ये बहुत सारे लाइब्रेरी में मिल जाएंगे ये सब बुक। इसका नाम है अल-दूरिया, सफा नंबर 197 पे लिखते हैं। अरे नहीं भाई, आपको किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता है। आप वो भेजिए, आप भेजिए। आप तस्लीम नहीं करते हैं ना। नहीं, आप भेजिए ना इबारत भाई। अच्छा, एक बात बताइए हजरत, मैं आपको कह रहा हूँ हजरत, आप एक बार गौर से सुने कि मौलाना अहमद मैं सुन लिया आपकी बात, मैं 50 बार सुन लिया। पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए आपके पास कॉल किया, आप क्लियरिफिकेशन आप पहले अच्छे से सुन ले। अच्छा सुनिए, हिफ्जुल ईमान की खुफिया मैं आपको गिनवाऊं? आपने बोला को आला हजरत ने काफिर नहीं बोला। सुनिए, मुसलमान लिखा है। अच्छा, सुनिए ये हवाला आला हजरत ने मौलाना अशरफ अली थानवी को मुसलमान लिखा है। अच्छा, काफिर नहीं बोला? नहीं, मौलाना अशरफ अली कैसे आलिम है? आप कैसे आलिम है? क्या पढ़ते हैं? मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, और आपको नॉलेज नहीं है। मैंने तो आपको इबारत भी बताई कि अशरफ अली थानवी ने, देखिए आपने किताब देखी ही नहीं है, किताब की दुनिया में आप आए ही नहीं है। आपको अगर मेरी बात सुननी है तो सुनिए। हम आपको कह रहे हैं कि मौलाना अहमद रजा खान साहब ने मौलाना अशरफ अली थानवी को मुसलमान बार वहीं पे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, क्या है इसका क्या जवाब दे रहे हैं? अरे आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आप इसका क्या जवाब दे रहे हैं? अच्छा, आप एक मौजू को ले रहे हैं, मैं 50 मौजू बता रहा हूँ, एक ही मौजू को क्यों ले रहे हैं? पहले आप 50 देखिए, 50 मौजू तो यही तो है। देखिए आप ये बताइए कि आलिम आप बात करने के काबिल नहीं है। अच्छा, मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ। सुनिए, भागिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लग रहा है मुझे प्लानिंग बना रहे हैं। अभी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 50 मौजू, आप बोल रहे हैं 50 मौजू। किस आलिम ने कहा? चलिए, ठीक है, एक बात सुन लीजिए। एक ही बात, मिसाल जो एक बात आपने पेश की है, जो मैं एक बात बोलूंगा, पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। आप जो इबारत आपने पेश की है। अच्छा, ये बताइए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले ये बताइए। इबारत ही तो बोलिएगा, जो इबारत आपने पेश की उसी पे बात करिए। मिसाल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आगे पीछे नहीं। अगर सुनिए, अगर जो आपने इबारत मेरी बात सुनिए आप। अगर मेरी भाई कोई, अगर भाई है, मान लीजिए मेरा कोई भाई है, अगर वो गलती करे, वो मेरे नजदीक है, ठीक है, तो अगर वो गलती करे तो मैं सबसे पहले मैं उसकी गलती के बारे में मैं जानूंगा ना। हाँ। और जो नहीं जानता वो दूर है, तो वो दूर की बात आप पहले ये समझिए कि अगर मैंने क्या बोला कि अगर मेरे नजदीक कोई मेरा भाई है, अगर उसने गलती की तो सबसे पहले मैं जानूंगा ना कि उसने गलती की, तो मैंने तस्लीम नहीं, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं तस्लीम करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे भाई, आपके अकाबिर ने कुफ्र किया तो सबसे पहले आप तस्लीम कीजिए कि आपके अकाबिर ने कुफ्र किया। पहले आप तस्लीम कीजिए, उसके बाद दूर जाइएगा। अच्छा, हाँ, पहले आप तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, ये फिर आप सुनिए ना मेरी बात। आप पहले तस्लीम कर लीजिए कि अगर मेरे अकाबिर कर रहे हैं तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।
मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि अहमद रजा ने हजारों कुफरिया इबारत लिखी है। मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि उनके मलफूजात में हजारों कुफरिया बात लिखी हुई है। हवाला दीजिए, कोई हवाला दीजिए, हजारों गलत बात लिखी हवाला हुई है। हवाला हवाला मैं तस्लीम हवाला कर रहा हूँ कि दीजिए, अलामन वल उला में हजारों बातें इस्लाम के खिलाफ तो लिखी हुई है। हवाला मैं दीजिए तस्लीम ना। कर- अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो हवाला दे रहा हूँ। दे रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ। अरे कि किताब से तमीज़ कोई हवाला दीजिए, ये कैसी बात हुई? मैं मैं हवा- अब सुनिए, अब आप ऐसे मानिएगा नहीं। अच्छा सुनिए, हिफ्जुल ईमान की कुफरिया अकायद अशरफ अली थानवी सुनिए, सफ़ा नंबर बस 15 पे आप गुस्ताखी सुन करते रखिए, हैं आप नबी की शान में। सुनिए सुनिए, ये नबी भाई, को ऐसा जैसे सुनिए। नबी को जैसा इल्म गैब है वैसा इल्म गैब तो जैदो अमर मजनून हैवानात पागल सबको है। क्या नबी का इल्म गैब ऐसा ही है? अस्तगफिरुल्लाह आपको ये आप होश में हैं? ये अरे आप नबी के होश में सामने- हैं? जी बिल्कुल, आप होश में हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। आपको तो होश में है तो आप पहली वाली इबारत को काहे छोड़ दिए? अरे रे रे, हम अच्छा आपने- पहली वाली बात, आप हमने सुनिए 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 पहली वाली इबारत तो मैंने आपने- बताया तो। अरे पहली अरे वाली पहली वाली मैंने इबारत इबारत जो नहीं बोली है। मैं तो बताया तो कि इब्ने तैमिया नबियों से अफजल है, आपकी किताब में लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई वो इबारत आपने पेश नहीं की, वो इबारत पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो क्या इब्ने लिखा है? तैमिया वाला, पढ़िए वो अच्छा हाँ सुनिए, हाँ मैं पढ़िए। सफा नंबर भी बता, सुनिए इब्ने ये लिखते हैं, क्या नाम है, हाँ। अब्दुल हादी। वो अब्दुल इबारत हादी- पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ लिखते हैं कि इब्ने तैमिया नबियों से अफजल थे। अरे भाई वो तो इब्ने तैमिया क्या उर्दू में लिख रहे हैं क्या? अब जिसमें भी लिखा हो उससे क्या मतलब है, लिखा है कि नहीं लिखा? अरे भाई पढ़िए ना, उनकी इबारत पढ़िए ना, आप उनकी इबारत अरे पढ़ के सुनाइए हमको। तो पढ़ा तो, अरे जिसमें भी लिखा उसे क्या मतलब है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा आप अपने जाकर लाइब्रेरी में देख लें। अरे मेरे भाई कहाँ लिखा है वो पढ़े तो सही आप। अरे मैं तो आपको अभी 50 हवाला गिनवा सकता हूँ, तो आप तो भाग अरे एक ही जाइएगा। हवाला दे आप- दीजिए, एक ही हवाला दे अरे दीजिए, रे आप रे, पढ़िए पढ़िए। हवाला तो दिया, आपका काम अरे है, आप पढ़िए ना जाकर भाई। देखें। आप अच्छा आपने कहा ना कि नदियों से अफजल है, तो आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। पढ़ा तो कि ये क्या नाम है, अब्दुल हादी लिखता है हवाला, हाँ। तो हवाला सुनिए, अल उकूद अल दुरिया में अच्छा सफा नंबर 197 पे। अलजूरिया का क्या माने हैं? जिसका जो भी माने हो, तुम्हारा किताब है, तुम जानो, अरे मैं तो बताया तो। अलजूरिया कोई लफ्ज है, आपको नाम तक नहीं मालूम। अच्छा वो अच्छा, इबारत तो आप पढ़िए, इबारत क्या है बताइए, दूसरे इबारत को तो इतना पढ़ा बड़ा तो। इल्जाम लगा रहे मैं हैं पूरे लम्बे ना आपको सुनिए, किताब का- अरे आप ना कैसे आपको- आलिम हैं, सुनिए, आप देवबंद से ताल्लुक रखते हैं और अपने ही अकादियों के बारे वो में बात नहीं है। अपनी अकादियों आपने को, कहा- अपने ही अकादियों आपने की कहा- किताब आपने पढ़ा नहीं, आप कैसे आलिम हैं? आपने मुझे कहा तो कि लगता है आप नबी से आलिम नहीं, आप अफजल जाहिल हैं। मुझे ये लगता है कि आप आलिम नहीं, आप जाहिल हैं। सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, हम अगर कोई बात कहेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ना कि वो बात लिखी हुई है। आप वो हाँ, बात तो दिखाइए ना, पढ़िए। मैं तो बहुत सारा दिखाया, चलिए उसको भी दिखाया और अशरफ अली थानवी के भी दिखा रहा हूँ, आगे सुनते रहिए। अच्छा अशरफ अली तो थानवी फिर क्या आप आपके जो है अकादी ना- नहीं है? अरे वो छोड़िए, आपने कहा अरे इब्ने आप बात तैमिया सुनिए नबी तो से क्या अफजल है। बताइए तो, अशरफ अली थानवी आपके अकाबिर हैं कि नहीं है? आप पहले तस्लीम कीजिए। आपने कहा इब्ने तैमिया नबियों से अफजल है, कहाँ लिखा है दिखाइए। मैं तो बताया तो, तो पढ़ के सुनाइए ना, पढ़ के सुनाइए, पढ़ के तो सुनाया पढ़िए ना। कि पढ़ा तो कि अब्दुल हादी लिखता है अल उकूद अल दुरिया में सफ़ा नंबर 197 में कि इब्ने तैमिया नबियों से अफजल है। क्या लिखा है, क्या लिखता है? इब्ने तैमिया नबियों से अफजल है। अबे भाई वो तो उर्दू तो जानते ही नहीं, तो उर्दू में अरे कैसे आप लिख रहे हैं? सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, आप एक नए नबी, वो उर्दू में लिखते हैं किताब, खात्मे अलजूरिया और- नबूवत को और ही जो इनकार क्या- कर दीजिए। आप लोग माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग खात्मे नबूवत अच्छा। को इनकार कर दीजिए। आपको यहाँ पे नबी से अफजल बताया जा रहा है। अच्छा इसमें दूसरे नबी से अफजल बताया जा रहा है। किसी में बताया गया ऐसा कि आपको किताब का आपके नाम तक उलमा नहीं इकराम पता। पे वही भी आती है क्या? क्या अच्छा नबी के अलावा और भी किसी पे वही आती है? अरे कहाँ कौन पढ़ाया है आपको? इस कौन तरह पढ़ाया बात है? होती है, इस तरह बात होती हवाला है। दूं आपको, हवाला दूं? इस तरह बात होती है। तो किस तरह बात होती है, किस तरह बात होती है? देखो अगर इस तरह बात करोगे तो कभी जिंदगी में मैं फिर फोन रिसीव नहीं करूंगा तुम्हारा। अच्छा आप बात असल ये है कि जो एक हाँ, बात मुझे कह मुझे देते हो मालूम है कि आप वो- फोन रिसीव नहीं कीजिएगा क्योंकि आप भागिएगा ना। हाँ। आपको नबी की तौहीन बर्दाश्त है, लेकिन अपने काबिरों की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। आपने इब्ने तैमिया पर इल्जाम लगाया, आपने इब्ने तैमिया पर इल्जाम लगाया, झूठ अरे पहले बोला, आप तो इबारत तस्लीम आप- कीजिए कि वो कुफरिया अकायद है कि नहीं है। पहले आप तस्लीम कीजिए, दो कौन बाद में सा? जाइएगा। मैं तो बोला कि मैं आपकी बात सुनूंगा, अगर नहीं सुना तो जो चोर की सजा मेरी सजा। कौन सा कुफरिया अकीदा है? अरे बताया तो इब्ने तैमिया का वो अकीदा। तो कहाँ है भाई, आप पढ़ के सुनाएंगे ना? अल्लाह तो सुना तो दिया, और हवाला किसे भी दिया। सुनाइए? अब आप ना माने तो मेरी क्या गलती है?
मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप लोग एक काम कीजिए, अपने मतलब में ये एक फतवा दे दीजिए कि खत्म नबूवत जैसी कोई बात नहीं है, इसके बाद और नबी आ सकते हैं मादअल्लाह, क्योंकि आपके उलमा इकराम पे वही भी आते हैं, आपके उलमा इकराम का जो है, आपके उलमा इकराम नबी से अफजल भी हैं। और भी बहुत सारे, अरे तुम भागोगे, मुझे मालूम है तुम भागोगे। अभी मैं बहुत सारे हवाले गिनवाऊंगा तुझे, तू भागेगा, मुझे यकीन है, ठीक है। अरे इबारत पढ़ना चाहिए बाबू, इबारत पढ़ो, इबारत। अच्छा बाबू, कहाँ लिखा है कि इब्ने तैमिया अफजल है? ये बाबू आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, मुझे लगता है। कहाँ लिखा है कि इब्ने तैमिया अफजल है? अबे हवाला तो दिया मैं अभी। कहाँ? तो पढ़ो ना वो हवाला, उर्दू में इब्ने तैमिया लिखते थे, अब्दुल हादी उर्दू में लिखते हैं। अब्दुल हादी लिखा हो तुम्हारी किताब, तुम जानो, मैं तो हवाला सफा नंबर तक बताया तुमको। अरे तुमको सफा नंबर तक बताया। अब्दुल हादी उर्दू लिखते हैं, जो लिखते हैं। किसने आपको भेज दिया फोन करने के लिए? आपको किसने कहा? जब आप आलिम नहीं हैं, आप जाहिल हैं, जब आपको अरबी नहीं आती, जब आप जानते नहीं कि अब्दुल हादी उर्दू जानते कि नहीं जानते, तो आपने क्या मतलब है उर्दू जाने या ना जाने, उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा? अरे तो अरब से उर्दू नहीं जानते तो मान लीजिए अरबी में लिखे होंगे। हाँ तो अरबी पढ़ो ना भाई, वो क्या है, कौन सी इबारत है जिससे आपने समझा कि इब्ने तैमिया अफजल है? अच्छा ये बताइए कि अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन तो इल्जाम लगाने से पहले आपको जरा अरबी से उर्दू ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है, पहले आप ये बताइए। अरे भाई आपने ट्रांसलेट किया? कौन ट्रांसलेट किया? आप सुनिए, आप अगर ट्रांसलेट करने वाले हैं तो आप मुजरिम हैं, आप मुजरिम हैं, आप अब्दुल हादी का नाम नहीं ले सकते हैं, वरना अब्दुल हादी की आप इबारत पढ़ के सुनाइए कि उन्होंने क्या लिखा है। बात सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। आप जब अरबी का आइन नहीं जानते हैं, आप जब आलिम नहीं है, तो कैसे आपने जुर्रत की किसी को फोन करने की? बताइए, अकायद के लिए अरबी का आइन जानना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जानना जरूरी है, वरना आप इसको नहीं कर सकते। आप अपने उलमा की बात सुनिए। अच्छा, अकायद के लिए अरबी का आइन जानना जरूरी है क्या? भाई कैसे आलिम है हजरत आप? हम आपको कह रहे हैं कि मैं तो बोल तो रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिए कि खत्म नबूवत पे एक फतवा दे दीजिए कि खत्म नबूवत हुआ है, क्योंकि आपके कासिम नानवी पर तो वही भी नज़ुल होती है। सुनिए बाबू, हम आपसे ये कह रहे हैं, ये कासिम नानवी खुद लिखते हैं अपने पेज नंबर 200 सफा नंबर 298। अबे तू पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पागल हो गए मैं तो भाग सकते हो। पहले मेरा हवाला सुन के, जब मैं हवाला दूं, कभी कासिम नानवी की तरफ जाते हो, कभी अब्दुल हादी की तरफ जाते हो, कभी इब्ने तैमिया की तरफ जाते हो, कभी तक़ीयुल ईमान की तरफ जाते हो, क्या है तब का? ये सब तुम्हारे अकाबिरों के कुफरी अकायद है बे। तो तुमको उसमें से किसी एक पर बात करो, तस्लीम तो कर। अरे पहले तू तस्लीम तो कर किया कुफरी अकायद है कि नहीं है। अगर कोई ऐसा बोले वो कुफरी किया कि नहीं किया? मैं तस्लीम कर रहा हूँ बाबू कि अहमद रजा मुशरिक आजम गुजरा है। अरे तो फिर जो सारी किताबें उनकी बिदात अहमद रजा पर चला गया। वही तो बोला मैंने कि अगर तुम्हारे अल्लामा के बारे में कोई बात करे तो तुम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, और जो नबी की शान में गुस्ताखी करे तो तुम लोग बर्दाश्त करते हो। करो, हमारे कौन से अल्लामा अस्तगफिरुल्लाह, हमारे कौन से अल्लामा के मुताबिक बात करोगे? करूं? इब्ने तैमिया को तुमने लिया ना, तो अभी तुमने बोला ना, तुमने बोला ना, तो सुन, असफ अली खान की गुस्ताखी, अभी तुमने बोला कि कर बात कर।